Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining. We will start our session with a short meditation. Sit back comfortably. Take a deep breath in, deep breath out. Focus between the center of your forehead. Surrender yourself to the Supreme. Let the Supreme Soul, your parent soul, guide you throughout the day. Remember, I am made of love and light. I am God's child. God's powers, love, and blessings are always with me. I am being protected by the Supreme. I am a peaceful soul. I am calm and relaxed. I am a happy soul. I am blissful. I am loving and lovable. I am surrounded by love and gratitude. Everybody loves me. Everybody is out there to help me. I love and help myself and all others. My mind and body are perfectly healthy and will always be. I focus in the present moment. I have everything in the present, which I utilize very well. My concentration level is at the highest, and I concentrate on the positive and beautiful aspects of life. All is well. Om Shanti. Now let me share the PDF with you all. Is the PDF visible to everybody? Yes, it's visible. Thank you, Dev. Today we will start from when the boy left the tent. The oasis was illuminated only by the light of the full moon. He was 20 minutes from his tent and began to make his way there. He was alarmed by what had happened. He had succeeded in reaching through to the soul of the world, and now the price for having done so might be his life. It was a frightening bet, but he had been making risky bets ever since the day he had sold his sheep to pursue his personal legend. And as the camel driver had said, to die tomorrow was no worse than dying on any other day. Every day was there to be lived or to mark one's departure from this world. Everything depended on one word, maktub. तो मकतूब का मतलब क्या होता है? इट इज रिटन. बॉय जो है सैंटियागो, वो ओएसिस में उस टेंट से लीव करता है और उसे अभी लग रहा है कि जैसे उसने जिस दिन से स्टार्ट किया है ना शेफर्ड, जब से उसने अपने शीप सारे सेल किए अपने परस्यू लेजेंड को परस्यू करने के लिए, तब
इसकी बेट से लगा रहा है। और अभी ये काफी फ्राइटनिंग बेट है कि उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन उसे याद आती है कैमल ड्राइवर की बात कि कल मरने कल मरना कोई बुरी बात नहीं, किसी भी दिन मरने से। तो हर एक दिन होता है किसी के जीने का और किसी के डिपार्चर का इस वर्ल्ड से, और एवरीथिंग एक ही वर्ड पर डिपेंडेंट होता है, नोट इट इज रिटन। Walking along in the silence, he had no regrets. If he died tomorrow, it would be because God was not willing to change the future. He would at least have died after having crossed the street, after having worked in a crystal shop, and after having known the silence of the desert and Fatima's eyes. He had lived every one of these days intensely since he had left home so long ago. If he died tomorrow, he would already have seen more than other shepherds, and he was proud of that. कभी वो साइलेंस में वॉक कर रहा है और उसे कोई रिग्रेट नहीं है, उसे सारी चीजें याद आती है कि जितना पहले उसने अपना घर छोड़ा, उसके बाद से उसके साथ जो भी इवेंट्स हुए, शेफर्ड बना, वो क्रिस्टल शॉप में वर्क किया उसने, डेजर्ट के साइलेंस को पहचाना, फातिमा से मिला। तो उसे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बाकी शेफर्ड से कहीं ज्यादा चीजें देख चुका है और वो काफी प्राउड है इस चीज के लिए। Suddenly he heard a thundering sound and he was thrown to the ground by a wind such as he had never known. The area was swirling in dust so intense that it hid the moon from view. Before him was an enormous white horse rearing over him with a frightening scream. When the blinding dust had settled a bit, the boy trembled at what he saw. Astride the animal was a horseman, dressed completely in black, with a falcon perched on his left shoulder. He wore a turban, and his entire face, except for his eyes, was covered with a black kerchief. He appeared to be a messenger from the desert, but his presence was much more powerful than that of a mere messenger. अचानक से एक थंडरिंग साउंड आता है और वो जो बॉय है विंड उसे थ्रो अवे करती है, उसे ग्राउंड पर ले जाती है और उसको कोई कुछ समझ ही नहीं आता है। ये जो स्वर्लिंग विंड में मतलब कि इसमें पूरा जो डस्ट उड़ते रहता है उसकी वजह से मून पूरा ढक जाता है, और जब ये थोड़ा सा सेटल होता है उसके बाद वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा हॉर्स है, उसके ऊपर एक हॉर्समैन है जो कम्प्लीटली ब्लैक में ड्रेस्ड है, खाली उसके आईज विजिबल है, उसने एक टर्बन पहनी हुई है और उसका फेस पूरा कवर्ड है। ऐसा लगता है कि इस डेजर्ट ने ही सैंटियागो के पास ये मैसेंजर भेजा है, पर ये मैसेंजर इस मैसेंजर की जो प्रेजेंस है यही काफी ज्यादा पावरफुल है। The strange horseman drew an enormous curved sword from a scabbard mounted on his saddle. The steel of its blade glittered in the light of the moon. Who dares to read the meaning of the flight of the hawks? He demanded, so loudly that his words seemed to echo through the 50,000 palm trees of Al Fayoum. It is I who dared to do so, said the boy. He was reminded of the image of Santiago Matamoros, mounted on his white horse, with the infidels beneath his hooves. This man looked exactly the same, except that now the roles were reversed. It is I who dared to do so, he repeated, and he lowered his head to receive a blow from the sword. Many lives will be saved because I was able to see through to the soul of the world. The sword didn't fall. Instead, the stranger lowered it slowly until the point touched the boy's forehead. It drew a droplet of blood. The horseman was completely immobile, as was the boy. It didn't even occur to the boy to flee. In his heart, he felt a strange sense of joy. He was about to die in pursuit of his personal legend. And for Fatima, the omens had been true after all. Here he was, face to face with his enemy, but there was no need to be concerned about dying. The soul of the world awaited him, and he would soon be a part of it, and tomorrow his enemy would also be a part of that soul. तो वो जो
हॉर्समैन आता है ना, वो पूछता है कि किसने वो सारे वुमेन्स रीड किए, किसने ये डेयर किया कि उसने मतलब जैसे उसने देखा ना कि कुछ उसे व्यू दिखे थे उस वक्त कि एक आर्मी आ रही है उस ओएसिस पर हमला करने के लिए, तो ये सब सैंटियागो ने ही बताया था ट्राइबल चिeftains को। तो वो आदमी जो है हॉर्समैन वो यही पूछ रहा था, तो सैंटियागो ने बोल दिया कि मैंने ही ये चीज किया। उसके बाद उसने बोला कि बहुत सारी लाइव्स यहाँ पे सेव हो जाएगी। तब फिर वो जो मैन है अपनी स्वर्ड को धीरे नीचे करता है धीरे धीरे, और फिर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड गिरता है। तो अभी जो सैंटियागो है उसे दुख नहीं है मरने का भी, कि अगर वो मर भी जाएगा तभी भी अपनी पर्सनल लेजेंड की परस्यूट में वो मरेगा। और अभी अगर वो मरेगा तभी भी क्या होगा कि वो सोल ऑफ द वर्ल्ड का एक पार्ट बन जाएगा, और कल उसके जो एनिमी है वो भी उसी सोल के एक पार्ट बन जाएंगे। यहाँ पे कितनी बड़ी बात लिखी है कि ये सोल ऑफ द वर्ल्ड जो है उसी से सब हम आते हैं और हम वापस उसी में चले जाते हैं। ऐसा हम अपने अपने रिलीजन्स में भी मानते हैं ना, जिनको भी हम गॉड भगवान बोलते हैं, तो हम ऐसा ही सोचते हैं ना कि उन्हीं से हम आए यहाँ पर अर्थ पर अपनी धरती पर रोल प्ले करके वापस उन्हीं के पार्ट बन जाएंगे। तो ये ऑल थिंग्स आर द सेम। The stranger continued to hold his sword at the boy's forehead. Why did you read the flight of the birds? I read only what the birds wanted to tell me. They wanted to save the oasis. Tomorrow all of you will die because there are more men at the oasis than you। उस स्ट्रेंजर ने बोला उसके बॉय के फोरहेड के ऊपर, उसने स्वर्ड होल्ड करके रखी थी, और उसने बोला कि तुमने क्यों फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स, जो वो हॉक्स थे उन्हें ही तो उड़ते हुए देख करके सैंटियागो ने बताया था ना कि इनकी जो फ्लाइट है आज वो डिफरेंट है, तो वैसे एनिमी आ रहे हैं। तो उसने बोला, स्ट्रेंजर ने पूछा कि तुमने उनकी उड़ान को क्यों पढ़ा। तो फिर सैंटियागो ने बोला मैंने सिर्फ वही पढ़ा जो कि वो बर्ड्स मुझे चाहती थी कि मैं जानूं और मैं लोगों को बताऊं। ओएसिस में तुम्हारे पास जितने आदमी हैं, उससे कहीं ज्यादा आदमी हैं और तुम सब कल मारे जाओगे। दिस वर्ड remained where it was. Who are you to change what Allah has willed? Allah created the armies and He also created the hawks. Allah taught me the language of the words. Everything has been written by the same hand, the boy said, remembering the camel driver's words. The stranger withdrew the sword from the boy's forehead and the boy felt intensely relieved, but he still couldn't flee. Be careful with your prognostications, said the stranger. When something is written, there is no way to change it. All I saw was an army, said the boy. I didn't see the outcome of the battle. The stranger seemed satisfied with the answer, but he kept the sword in his hand. What is a stranger doing in a strange land? I am following my personal legend. It's not something you would understand. The stranger placed his sword in its scabbard and the boy relaxed. I had to test your courage, the stranger said. Courage is the quality most essential to understanding the language of the world. The boy was surprised. The stranger was speaking of things that very few people knew about. तब उसने वो स्वर्ड वहीं पे जहाँ पे वो फोरहेड के ऊपर पकड़ के रखा था उसने पकड़ करके रखा, और फिर उससे पूछा कि तुमने फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स क्यों रीड किया। तो फिर उसने बोला सैंटियागो ने कि वो जो बर्ड्स चाहती थी वही मैंने रीड किया और मैंने लोगों को बताया, ओएसिस में और भी बहुत लोग हैं तो कल तुम सब मारे जाओगे। तो फिर उसने पूछा कि तुम कौन होते हो, अल्लाह जो चाहते हैं उसे चेंज करने वाले। तो फिर उस सैंटियागो ने कैमल ड्राइवर की बात याद की और उसे बोला कि अल्लाह ने ये आर्मीज भी क्रिएट किया, उसने हॉक कि अल्लाह ने मुझे लैंग्वेज ऑफ वर्ड सिखाया है और हर कुछ एक ही हैंड से लिखा गया है। उसके बाद में उस स्ट्रेंजर ने उस सैंटियागो के सर से अपनी तलवार हटा ली, और फिर उसने बोला कि जब कुछ लिखा हुआ होता है तो फिर कोई तरीका नहीं होता उसे चेंज करने वाला। तो फिर सैंटियागो ने बोला मैंने सिर्फ एक आर्मी देखी थी, मैंने उस बैटल के आउटकम को नहीं देखा था। फिर उसने स्ट्रेंजर ने उससे पूछा सैंटियागो से कि एक स्ट्रेंजर इस स्ट्रेंज लैंड पे क्या कर रहा है। तो फिर सैंटियागो ने कहा कि मैं अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो कर रहा हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ पाओगे।
तुम समझ सकते हो, तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद में उसने अपने स्कैबर्ड में जो तलवार की म्यान होती है उसमें अपनी तलवार वापस रख दी और फिर सैंटियागो रिलैक्स हो गया। उसके बाद तो स्ट्रेंजर ने कहा कि मुझे तुम्हारी करेज को टेस्ट करना होगा, क्योंकि करेज सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है कि हम लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकें। द बॉय वाज सरप्राइज्ड, द स्ट्रेंजर वाज स्पीकिंग ऑफ थिंग्स दैट वेरी फ्यू पीपल न्यू अबाउट। तो अभी सैंटियागो सरप्राइज हो गया, क्योंकि इसने ऐसी बात कही जो कि बहुत कम लोग ही जानते हैं। यू मस्ट नॉट लेट अप even after having come so far. He continued, you must love the desert but never trust it completely, because the desert tests all men. It changes every step and kills those who become distracted. The stranger ने बोला कि तुम्हें अभी, जब तुम इतनी दूर आ गए हो तो फिर तुम्हें अभी ये सब चीजें छोड़नी नहीं है। तुम्हें इस डेजर्ट को लव करना है, पर इसको कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो डेजर्ट है ये सारे मेन को, सारे लोगों को टेस्ट करता है और ये हर एक स्टेप में उसे चैलेंज करता है, और जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उन्हें मार भी देते हैं। What he said reminded the boy of the old king. If the warriors come here and your head is still on your shoulders at sunset, come and find me, said the stranger. तो स्ट्रेंजर ने बोला कि जब वॉरियर्स यहाँ पे आएंगे और उसके बावजूद तुम्हारे शोल्डर पे तुम्हारा हेड रहे, तो फिर सनसेट पर तुम आना और मुझे ढूंढना। उसे, उसके शोल्डर पर हेड रहे मतलब कि वो अगर जिंदा रहे, तो अगर तुम जिंदा रहो तो फिर आकर मुझसे मिलना। द सेम हैंड हैड बीन brandished, this word now held a whip. The horse reared again, raising a cloud of dust. Where do you leave? Shouted the boy as the horseman rode away. The hand with the whip pointed to the south. The boy had met the alchemist. तो अभी उसने जो चीजें कही ना कि हर एक स्टेप पर ये डिजर्ट चैलेंज करता है और जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उन्हें मार देते हैं, ये सब कुछ जब वो कह रहा था तो फिर सैंटियागो को उस ओल्ड किंग की याद आ गई। और उसके बाद में उसने बोला था कि अगर वॉरियर्स यहाँ पे आएंगे और तुम जिंदा रहोगे तो मुझे आकर के मिलना। और फिर उसने अपनी whip पकड़ी और हॉर्स को लेकर के चला गया वो। और फिर सैंटियागो ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो फिर उसने साउथ की तरफ पॉइंट किया। अभी जो सैंटियागो है वो एल्केमिस्ट से मिल चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वर 2000 armed men scattered throughout the palm trees at El Payon. Before the sun had reached its high point, 500 tribesmen appeared on the horizon. The mounted troops entered the oasis from the north. It appeared to be a peaceful expedition, but they all carried arms hidden in their robes. When they reached the white tent at the center of Al Fayoum, they withdrew their squitters, scimitars, and rifles, and they attacked an empty tent. The men of the oasis surrounded the horsemen from the desert, and within half an hour, all but one of the intruders were dead. The children had been kept at the other side of a grove of palm trees and saw nothing of what had happened. The women had remained in their tents, praying for the safekeeping of their husbands, and saw nothing of the battle either. Were it not for the bodies there on the ground, it would have appeared to be a normal day at the oasis. The only tribesman spared was the commander of the battalion. That afternoon, he was brought before the tribal chieftains, who asked him why he had violated the tradition. The commander said that his men had been starving and thirsty, exhausted from many days of the battle, and had decided to take the oasis so as to be able to return to the war. Tribal chieftain said that he felt sorry for the tribesmen, but that the tradition was sacred. He condemned the commander to death without honor. Rather than being killed by a blade or a bullet, he was hanged from a dead palm tree, where his body twisted in the desert wind. The tribal chieftain called for the boy and presented him with 50 pieces of gold. He repeated his story about Joseph of Egypt and asked the boy to become the counselor of the oasis. तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो लोग रहते हैं 2000 आर्म्ड मैन,
वो सब आते हैं, इंटर करते हैं ओएसिस में, और उसके बाद में अटैक करते हैं एक एम्प्टी टेंट को। पहले जब वो लोग नॉर्थ से इंटर करते हैं तो काफी पीसफुल लगता है, पर उसके बाद में वो लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे बैटल हो जाता है। तो जो इस ओएसिस के जो मेन है वो लोग उनको हरा देते हैं, और जो बच्चे रहते हैं और जो वुमेन रहती है वो इस बैटल के बारे में कुछ भी नहीं देखती है, उनको दूसरे साइड रखा जाता है। बस वो लोग प्रे करते हैं अपने घर वालों के लिए। और अगर ये जो बॉडीज हैं, जो लोग मर गए थे 2000 आर्म्ड मैन, उनमें से एक जन को छोड़ के बाकी सबको मार दिया गया था, तो वो सब की अगर बॉडीज नहीं होती तो ये लगता कि नॉर्मल डे ही है ओएसिस का कोई। और फिर वो जो एक जन बच जाता है उससे पूछा जाता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए थे, इस ट्रेडिशन को क्यों वायलेट किया। यहाँ का ट्रेडिशन रहता है ना कि ओएसिस एक न्यूट्रल ग्राउंड रहता है, वहां पे कोई आर्म ट्रूप्स को भी शेल्टर नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे कोई मतलब अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेकर भी नहीं रह सकते। तो तुम लोग आर्म्स लेकर क्यों आए, इस पर अटैक क्यों किया। तो फिर उसने बोला कि वो लोग सब भूखे प्यासे थे, और बैटल से बहुत दिन के बैटल से एग्जॉस्ट हो गए थे, इसीलिए उन्होंने इस ओएसिस को टेक करना सोचा, ताकि वो लोग वापस अपने वॉर में रिटर्न कर सके। उसके बाद में उसे सॉरी फील तो होता है, पर फिर वो जो एक जन बचता है उसे फिर वो टू बी हैंग्ड का एक ऑर्डर दे देता है। तो फिर उसे एक पाम ट्री से हैंग कर दिया जाता है, उसकी बॉडी फिर डेजर्ट विंड से ट्विस्ट हो जाती है। और ये सब कुछ होने के बाद में जो ट्राइबल चिफ्टन है वो सैंटियागो को बुलाता है और उसे 50 पीसेस ऑफ गोल्ड में प्रेजेंट करता है, और फिर उसे ऑफर देता है कि वो इस ओएसिस का काउंसलर बन जाए। When the sun had set and the first stars made their appearance, the boy started to walk with the south. He eventually sighted a single tent and a group of Arabs passing by the boy that it was a place inhabited by jinnees. But the boy sat down and waited. Not until the moon was high did the alchemist ride into view. He carried two dead hawks over his shoulder. I am here, the boy said. You shouldn't be here, the alchemist answered. Or is it your personal legend that brings you here? With the wars between the tribes, it's impossible to cross the desert. So I have come here. The alchemist dismounted from his horse and signaled that the boy should enter the tent with him. It was a tent like many of the others. The boy looked around for the ovens and other apparatus used in alchemy but saw none. There were only some books in a pile and a small cooking stove, and the carpets covered with mysterious designs. तो अभी जब सनसेट होता है सैंटियागो वहां पे वॉक करना स्टार्ट करते हैं ठीक है। कुछ जो ग्रुप ऑफ अरब्स रहते हैं वो बताते हैं कि इस प्लेस में जिन्नीस है, लेकिन फिर भी सैंटियागो वहां पे रुककर वेट करते हैं। और जब ये हाई चला जाता है तो फिर अल्केमिस्ट राइड करके वापस आते हैं और अपने साथ में रेड हॉर्स अपने शोल्डर पे कैरी करके लाते हैं। फिर सैंटियागो उससे कहता है आई एम हियर। तो फिर अल्केमिस्ट कहता है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, या फिर तुम्हारा जो पर्सनल लेजेंड है वही तुम्हें यहाँ लेकर आया है। तो फिर सैंटियागो कहता है कि ये जो ट्राइब्स के बीच में वॉर होते गए, इसके बीच में इम्पॉसिबल है कि इस डिजर्ट को क्रॉस किया जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो फिर अल्केमिस्ट अपने हॉर्स से उतरता है और फिर सैंटियागो को सिग्नल देता है कि वो उस टेंट में उसके साथ एंटर करे। और वो जो टेंट रहता है वो ओएसिस के बाकी टेंट्स की तरह ही रहता है। तो सैंटियागो खोजने की कोशिश करता है वहाँ पे ओवेंट्स और अदर एपरेटर्स जो कि अल्केमी में यूज होते हैं, पर उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सैंटियागो ये सब क्यों खोजता है, क्योंकि जो उसका फ्रेंड रहता है ना इंग्लिशमैन, वही उसे बताता है कि जो अल्केमिस्ट होते हैं उनके टेंट्स में वही सब कुछ मिलते हैं। और वो उस अल्केमिस्ट के टेंट में देखता है कि कुछ बुक्स रखे हैं पाइल में, एक स्मॉल कुकिंग स्टोव है और कार्पेट्स हैं जो कि मिस्टीरियस डिजाइन से कवर किए गए हैं। Sit down, we'll have something to drink and eat these hogs, said the alchemist. तो फिर वो उसे ऑफर करता है कि तुम बैठो, तो हम लोग कुछ ड्रिंक करेंगे और इन हॉग्स को ईट करेंगे। The boy suspected that they were the same hawks he had seen on the day before, but he said nothing.
The alchemist lighted the fire and soon a delicious aroma filled the tent. It was better than the scent of the hookahs. तो इसको सैंटियागो को ये रहता है सस्पिशन। वो शक करता है कि ये जो हॉक्स को देख करके उसने ये जाना कि यहाँ पे हमला होने वाला है, ये सेम हॉक्स ही शायद ये मारकर लेकर आया है। और फिर अल्केमिस्ट फायर लाइट करते हैं और फिर उन्हें जब कुक करता है तो डिलीशियस अरोमा इस पूरे टेंट को फिल कर देता है, और जो कि हुक्का के सेंट से भी काफी ज्यादा बेटर है। Why do you want to see me? The boy asked. Because of the humans, the alchemist answered. The wind told me you would be coming and that you would need help. It's not I, the wind spoke a lot. It's the other foreigner, the Englishman. He's the one that's looking for you. He has other things to do first, but he is on the right. He has begun to try to understand the difference. And what about this? When a person really desires something, all the universe conspires to help that person to realize his truth, said the artist, the flowing difference of the old thing. The understood. And the person is there to help him towards his personal legend. सैंटियागो से पूछता है कि तुम मुझे क्यों देखना चाहते थे, तो अल्केमिस्ट आंसर करता है कि वुमेन्स की वजह से विंड ने मुझे बताया था कि तुम आ रहे हो और तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी। तो सैंटियागो कहता है कि विंड ने मेरे बारे में नहीं बताया, एक दूसरे फॉरेनर के बारे में बताया, इंग्लिशमैन, वही तुम्हें ढूंढ रहा है। तो अल्केमिस्ट कहता है कि उससे पहले दूसरी चीजें करनी होंगी, पर वो राइट ट्रैक पे है और अब वो डेजर्ट को भी अंडरस्टैंड करने लगा है। फिर सैंटियागो पूछता है कि मेरे बारे में क्या, व्हाट अबाउट मी। तो फिर ओल्ड किंग की जो बात थी उसी को एको करते हुए अल्केमिस्ट भी कहता है कि जब कोई चीज हम रियली डिजायर करते हैं, कुछ शिद्दत से हम चाहते हैं, तो पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है, पूरी कायनात, वो हमें उससे मिलाने की कोशिश करती है पूरी। तो उस पर्सन को उसके ड्रीम से रियलाइज कराया जाता है, पूरी यूनिवर्स उसकी हेल्प करती है। ये जैसे शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना कोई फिल्म में कि जब तुम शिद्दत से कुछ चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करती है, तो ये वही वाला है जो कि बार बार यहाँ पे लिखा गया है। तो ये हम बार बार याद कर सकते हैं हमारा जो भी ड्रीम हो उसके लिए, कि जब हम सच में उस चीज को डिजायर करते हैं तो पूरी यूनिवर्स हमें हेल्प करती है। जैसे ये सैंटियागो की स्टोरी में भी हमने देखा ना कि कितने लोग मिले उससे, कितना कुछ हुआ उसके लाइफ में, बहुत कुछ ऑपोजिट हुआ, जबकि उसने अपने ड्रीम को एकदम ही छोड़ देने का सोच लिया था। जैसे कि जब उसके पैसे चोरी हो गए थे, तो जो शिप से बेचकर उसे जितने पैसे मिले थे सारे के सारे वो चोर चुरा कर ले गया। उसके बाद जब वो क्रिस्टल शॉप में वर्क करने लगा तो उसने क्या सोचा कि अभी थोड़े से पैसे जमा करके वापस रिटर्न टिकट करके अपने घर जाऊंगा और वापस से शेफर्ड वाला काम करूंगा। पर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि ये उसके ड्रीम नहीं है और ड्रीम रियलाइज करने का टाइम यही है। और फिर वो अपने पर्सनल लेजेंड की तरफ ही आता रहा, कितने सारे चैलेंजेस उसने पार करे। तो ऐसे ही हम सबकी लाइफ में भी होता है, हम सबकी लाइफ की स्टोरी होती है। तो हमें फोकस करना होगा गुड थिंग्स पे और कंसंट्रेट करना होगा अपने ड्रीम पे। भले ही कुछ भी होते रहे, लेकिन हमें अपने ड्रीम को रियलाइज करने के लिए जब हम पूरी अपनी मतलब पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, अपना पूरा बेस्ट देंगे, तो वो जरूर हम रियलाइज कर पाएंगे। तो अभी सैंटियागो को ये चीज समझ आ जाती है जब ये कहते हैं, और वो सोचता है कि अपने पर्सनल लेजेंड को, अपनी डेस्टिनी को, अपने ड्रीम को रियलाइज करने के लिए अभी उसे एक और इंसान मिल गया है जो उसकी हेल्प करेगा। सो यू आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट मी, इसलिए सैंटियागो उस अल्केमिस्ट से पूछता है कि क्या तुम अब मुझे इंस्ट्रक्ट करने वाले हो। नो, यू ऑलरेडी नो ऑल यू नीड टू डू, आई एम ओनली गोइंग टू पॉइंट यू इन द डायरेक्शन ऑफ योर ट्रेशन। अल्केमिस्ट कहता है कि नहीं, मैं इंस्ट्रक्ट नहीं करने वाला, तुम्हें सब कुछ पता है जो भी तुम्हें जानना चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें पॉइंट करूंगा उस डायरेक्शन में जहाँ पे तुम्हारा ट्रेजर है। But there's a tribal boy, the boy reiterated. I know what's happening in the desert. I have already found my treasure. I have a camel, I have my money from the crystal shop, and I have 50 gold pieces. In my own country, I would be a rich man. सैंटियागो कहता है कि एक ट्राइबल वॉर हो रहा है, तो इसके बीच में डेजर्ट कैसे क्रॉस किया जाएगा, तुम डायरेक्शन पॉइंट कर भी दोगे तभी की। तो फिर
वो कहते हैं एल्केमिस्ट कि मुझे पता है डिजर्ट में क्या होता है। तब सैंटियागो कहता है कि मुझे मेरा ट्रेजर मिल गया, मेरे पास एक कैमल है, मेरे पास पैसे हैं क्रिस्टल शॉप में जो मैंने अर्न किए काम करके, और मेरे पास अभी 50 गोल्ड पीसेस भी आ गए जो कि उसे यहाँ की ओएसिस के चीफ ने दिए थे। और मेरी खुद की कंट्री में मैं अगर जाऊंगा तभी भी मैं एक रिच मैन रहूंगा। बट नन ऑफ दैट इज फ्रॉम द पिरामिड, सेड द अल्केमिस्ट। तो फिर अल्केमिस्ट ने कहा कि इसमें से तो कुछ भी तुम्हें पिरामिड से नहीं मिला, और तुम्हारा जो ट्रेजर है वो तो पिरामिड्स में है ना। तो सैंटियागो कहता है आई आल्सो हैव फातिमा, शी इज अ ट्रेजर ग्रेटर देन एनीथिंग एल्स आई हैव गॉट। तो अभी सैंटियागो जो कि फॉल कर चुका है लव में, तो वो कहता है कि मेरे पास फातिमा भी है और वो एक ट्रेजर है मेरे लिए जो कि बाकी कोई भी चीज से ज्यादा बड़ी ट्रेजर है। शी वाज़न्ट फाउंड एट द पिरामिड फिगर। तो अल्केमिस्ट कहता है ये भी तो तुम्हें पिरामिड में नहीं मिली थी ना। दे एट इन साइलेंस, इसके बाद साइलेंस में वो दोनों खाना खाते हैं। द अल्केमिस्ट ओपनड द बॉटल एंड poured a red liquid into the boy's cup. It was the most delicious wine he ever tasted. It's wine. Isn't wine prohibited here? The boy asked. It's not what enters men's mouth. That's it, said the alchemist. It's what comes out of their mouths that is. तभी alchemist एक बॉटल ओपन करके उसे रेड लिक्विड एक कप में डाल के देता है। तो सैंटियागो ने जिसकी वाइन अभी तक टेस्ट की सबसे ज्यादा डिलीशियस हो गया। फिर सैंटियागो उससे पूछता है कि यहाँ पे तो वाइन प्रोहिबिटेड नहीं है क्या। तो फिर अल्केमिस्ट कहता है कि जो मैन के माउथ से जाते हैं वो इवन नहीं है, वो खराब नहीं है, पर जो उसके माउथ से बाहर आता है वो खराब है। मतलब कि उसका व्यवहार, जो बिहेवियर उसका रहता है उसके बाद में, वो सब खराब होता है। The alchemist was a bit daunting, but as the boy drank the wine, he relaxed. After they finished eating, they sat outside the tent under a moon so brilliant that it made the stars pale. Drink and enjoy yourself, said the alchemist, noticing that the boy was feeling happier. Rest well tonight as if you were a warrior preparing for combat. Remember that wherever your heart is, there you will find your treasure. You have got to find the treasure so that everything you have learned along the way can make sense. अभी ये लोग मून के नीचे बैठते हैं, वहां पे मूनलाइट को एंजॉय कर रहे हैं। और अल्केमिस्ट नोटिस करता है कि जो सैंटियागो है वो भी बेटर फील कर रहा है, हैप्पी फील कर रहा है। तो वो कहता है कि ड्रिंक करो और एंजॉय करो, आज रात तुम अच्छे से रेस्ट करो, ऐसे सोचो कि तुम एक वॉरियर हो और कम्बैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। रिमेम्बर, याद क्या रखना है, जहाँ पे भी तुम्हारा दिल होगा वहीं पे तुम्हें तुम्हारा ट्रेजर मिलेगा। तुम अपने ट्रेजर को खोजने के लिए गए हो, और जितना भी तुमने लर्न किया है अपने वे में, वो सब कुछ एक सेंस बनाएगा। तुम अपने ट्रेजर को खोजने के लिए जा रहे हो ना, तो अभी तक जितना भी तुमने कुछ लर्न किया है वो सब तुम्हें वो सब मेक सेंस करेगा जब तुम अपने ट्रेजर को पाने के लिए निकलोगे तब। Tomorrow, sell your camel and buy a horse. Camels are traitorous. They walk thousands of paces and never seem to tire. Then suddenly they kneel and die. But horses tire bit by bit. You always know how much you can ask of them, and when it is that they are about to die. So, हाँ, अल्केमिस्ट ने बोला कि कल अपना कैमल सेल कर देना और एक हॉर्स खरीद लेना। कैमल्स क्या होते हैं, ट्रेटेरस होते हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस वॉक करते हैं, कभी भी वो टायर्ड फील नहीं करते। लेकिन सडनली एक दिन क्या होता है, वो नील करते हैं और उसके बाद में वो मर जाते हैं। और हॉर्सेस क्या होते हैं, वो टायर्ड होते हैं बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा टायर्ड होते हैं। तुम खुद भी जानते हो तुम उनसे कितना कुछ मांग सकते हो, मतलब कि वो बहुत डिस्टेंस कवर कर सकते हैं बहुत जल्दी। इसीलिए वो कह रहे हैं alchemist। The following night, the boy appeared at the alchemist's tent with a horse. The alchemist was ready and he mounted his own steed and placed the falcon on his left shoulder. He said to the boy, show me where there is life out in the desert. Only those who can see such signs of life are able to find treasure.
तो उसकी अगली रात क्या होता है, सैंटियागो अपने एक हॉर्स के साथ साथ अल्केमिस्ट के टेंट तक पहुंचता है, और फिर अल्केमिस्ट भी रेडी रहता है, वो भी अपने हॉर्स पे बैठता है और अपना जो फैल्कन रहता है उसे अपने लेफ्ट शोल्डर पर वो रखता है, और फिर वो उससे सैंटियागो को से कहता है कि इस डेजर्ट में लाइफ कहाँ है मुझे दिखाओ। और जो लोग ये इस टाइप के साइंस जान सकते हैं, लाइफ के साइंस जान सकते हैं, वो ही ट्रेजर को खोज सकते हैं। दे बिगैन टू राइड आउट ओवर द सैंड्स विद द मून लाइटिंग देयर वे। उसके बाद वो लोग उस सैंड्स पर चलना राइड करना स्टार्ट कर देते हैं अपने अपने घोड़ों पे, और मून लाइट रहती है। आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू फाइंड लाइफ इन द डेजर्ट, द बॉय थॉट। आई डोंट नो द डेजर्ट दैट विल येट। तो सैंटियागो सोचते रहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं लाइफ खोज पाऊंगा या नहीं, इस डेजर्ट को तो मैं इतनी अच्छे से जानता ही नहीं। He wanted to say to that to the He wanted to say so to the alchemist, but he was afraid of the man. He reached the rocky place where the boy had seen the hawks in the sky, but none there was. But now there was only silence and the wind. तो ये सब बातें वो अल्केमिस्ट से भी कहना चाहता है कि मैं डेजर्ट को इतने अच्छे से नहीं जानता, मुझे पता नहीं कि मुझे लाइफ के साइंस मिलेंगे कि नहीं। पर फिर वो उस अल्केमिस्ट से अफ्रेड भी रहता है, इसीलिए वो उस रॉकी प्लेस की तरफ रिच करता है जहाँ पे उसने हॉक्स को देखा था स्काई में। पर अभी सिर्फ और सिर्फ साइलेंस और विंड ही है उधर पे। आई डोंट नो हाउ टू फाइंड लाइफ इन द डेजर्ट, द बॉय सेड। आई नो दैट देयर इज लाइफ हियर बट आई डोंट नो वेयर टू लुक। लाइफ अट्रैक्ट्स लाइफ, द अल्केमिस्ट आंसर्ड। तो बॉय कहता है कि मुझे नहीं पता इस डेजर्ट में लाइफ कैसे फाइंड करें, मुझे पता है यहाँ पे लाइफ है पर मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे देखूं। द अल्केमिस्ट आंसर करता है, लाइफ अट्रैक्ट्स लाइफ। And then the boy understood. He loosened the reins on his horse, who galloped forward over the rocks and sand. The alchemist followed as the boy's horse ran for almost half an hour. They could no longer see the palms of the oasis, only the gigantic moon above them and its silver reflections from the stones of the desert. Suddenly, for no apparent reason, the boy's horse began to slow. There is life here, the boy said to the alchemist. I know. I don't know the language of the desert, but my horse knows the language of life. लाइफ अट्रैक्ट्स लाइफ सुनकर सैंटियागो समझ जाता है, वो अपने घोड़े की लगाम को लूज कर देता है, उसका घोड़ा उसे जहां तक लेकर जाता है फिर रुक जाता है, तो वो समझ जाता है कि यहीं पे लाइफ है, और वो अल्केमिस्ट से कहता है कि मुझे इस डेजर्ट की लैंग्वेज नहीं पता पर मेरे घोड़े को जरूर पता है। So we will keep our session till here today. We will start from Greatest Mountain from tomorrow. Thank you so much for joining. Thank you, Krishna sister, for joining. हाय करुणा। पता है कब ज्वाइन किया मैंने, क्या चल रहा था टॉपिक?